Hello students, welcome to our in BISAF Academy online classes. Dear student, in part 4 video, we have already solved some question of differential equations. Now student, in part 5 video, we will solve 3 questions of differential equations. Question number 1 is, find the particular solution of the differential equation dy by dx equal to minus 4x into y square given that y equal to 1 when x equal to 0. And question number 2 is, find the equation of a curve passing through the point minus 2 3 given that the slope of the tangent to the curve at any point xy is 2x upon y square. Question number 3 is, in a band, principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years rupees 1000 double itself? Now student, we will solve question number 1. Question number 1, solution. Given dy by dx is equal to minus 4x into y square. अब स्टूडेंट हम इसे वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो यहां हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x dx ऑन इंटीग्रेटिंग। स्टूडेंट इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy अपॉन y स्क्वायर दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 4x dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तब यहां से हम लिख लेंगे, अब यहां से लिखेंगे इंटीग्रेशन dy अपॉन y स्क्वायर मींस इंटीग्रेशन y raised to the power minus 2 dy this equal to minus 4, ये हो जाएगा x square by 2 plus c. This implies that y raised to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. यहां पर हो जाएगा y के पावर minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 this equal to minus 2 x square plus c. This implies that y is to the power minus 1 upon minus 1 equal to minus 2x square plus c. इसे स्टूडेंट हम लिख लेंगे minus 1 upon y this equal to minus 2x square plus c. माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 1 by y equal to 2x square minus c. This implies that y equal to 1 upon 2x square minus c. अब कंडीशन गिवन है कि y की वैल्यू 1 है when x equal to 0. इसे हम इक्वेशन नंबर a सपोज कर ले रहे हैं, putting x equal to 0 and y equal to 1 in equation number a, then we get y के जगह पर यहां लिख लेंगे 1 this equal to 1 upon 2 into x square, that means 0 minus c 1 equal to minus 1 upon c मीन्स यहां से c की वैल्यू हमें मिल जाएगा minus 1. इसे हम इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर a we get y equal to 1 upon 2x square, c की वैल्यू है -1
तो यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1, मींस y की वैल्यू हो जाएगा 1/2x² प्लस 1। दिस इज required particular solution of given differential equation. Now student, we will solve question number 2. Question number 2, solution. In question number 2, it is given that slope of the tangent to the curve at any point xy is 2x upon y square, and also we know that slope is dy by dx. According to question, slope of the tangent, student, slope of the tangent to the curve, slope of the tangent to the curve at point x y equal to 2x upon y square, and also we know that slope of the tangent to the curve is dy by dx, then we write dy by dx this equal to 2x upon y square. यहां पर हम इसे भी वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो यह हो जाएगा y square dy equal to 2x dx on integrating. यहां पे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन y square dy this equal to integration 2x dx plus c. लेट कर देना है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां पर c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। दिस implies that integration y square dy means y cube by 3 this equal to 2x square by 2 plus c. This implies that y cube by 3 this equal to x square plus c means y cube equal to 3x square plus 3c. अब इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर रहे हैं। According to question, the equation of a curve passing through the point -2, 3. According to question, it is passing through -2, 3. Therefore जब स्टूडेंट ये -2, 3 से पास कर रहा है तो x की जगह पर -2 लिखेंगे और y की जगह पर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? therefore from इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहां से हो जाएगा y क्यूब मींस 3 दिस इज इक्वल टू 3 into -2 होल स्क्वायर प्लस 3c 3 क्यूब मींस 27 दिस इक्वल टू, अब स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट मींस 12 प्लस 3c, तो यहां से 3c इक्वल टू हो जाएगा 15 मींस c इक्वल टू 5। c की वैल्यू 5 मिल गया। अब यही इक्वेशन नंबर सेकंड में हम पुट करेंगे, तो यहां हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर सेकंड, then we get y cube equal to 3x square plus 3 multiplied by c की वैल्यू है 5, तो यहां से y cube equal to 3x square plus 15 this implies that y equal to 3x square plus 15 raised to the power 1 by 3. This is required solution of given differential equation
या ऐसे भी कर सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 and also it is given that slope of the tangent to the curve at any point xy is 2x upon y square. स्टूडेंट यही रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा कर्व का. नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन. Let capital P represents principal at any time t. लेट कर ले रहे हैं कैपिटल P प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कोई भी टाइम t है. According to question, dp upon dt is equal to, स्टूडेंट यहां कहा जा रहा है प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर. ये जाएगा 5% ऑफ p. दिस इंप्लाइज दैट dp upon dt equal to 5 upon 100 multiplied by p. This implies that dp upon dt equal to, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/20 ये जाएगा p/20. यहां से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट, फिर यहां वेरिएबल सेपरेबल हम करेंगे तो यह हो जाएगा dp upon p दिस इक्वल टू dt upon 20 वेरिएबल सेपरेबल किए हैं ऑन इंटीग्रेटिंग. स्टूडेंट जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन dp upon p दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन dt upon 20 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1. दिस इंप्लाइज दैट इसे लिख लेंगे log p दिस इक्वल टू t upon 20 प्लस c1. अब स्टूडेंट यहां से हम लिख लेंगे p इक्वल टू, p की वैल्यू हो जाएगा e रेज़ टू द पावर t upon 20 प्लस c1. दिस इंप्लाइज दैट p इक्वल टू e रेज़ टू द पावर t upon 20 into e रेज़ टू द पावर c1. इसे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट p इक्वल टू e रेज़ टू द पावर t upon 20 into e रेज़ टू द पावर c1. ये भी एक कांस्टेंट है, इसे हम c से लिख ले रहे हैं. इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं c, वेयर c इक्वल टू e रेज़ टू द पावर c1. इसे हम इक्वेशन नंबर a सपोज कर रहे हैं. इनिशियली मींस स्टार्टिंग में व्हेन p इक्वल टू rs 1000 देन t इक्वल टू 0. स्टूडेंट तब t की वैल्यू हो जाएगा 0. फ्रॉम इक्वेशन नंबर a, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर a, इक्वेशन नंबर a से हम तब लिख लेंगे p के जगह पर पुट करेंगे 1000 दिस इक्वल टू e रेज़ टू द पावर t के जगह पर 0/20 दैट मींस 0 into c. दिस इंप्लाइज दैट 1000 इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 into c मींस c की वैल्यू आ जाएगा 1000. अब हम इसे इक्वेशन नंबर a में पुट करेंगे. पुटिंग दिस वैल्यू in equation number a. In equation number a we get, तो यहां से हमें मिलेगा वैल्यू t इक्वल टू e रेज़ टू द पावर t अपॉन 20 इनटू 1000. अब स्टूडेंट इसे हम सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर b. अब कहा जा रहा है इन हाउ मेनी टाइम्स रुपीज,
या इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 1000 डबल इटसेल्फ. लेट इन T years rupees 1000 becomes double itself. अब यहां पर जो 1000 है स्टूडेंट, अब कहा जा रहा है 1000 रुपीज डबल हो रहा है, मींस तब प्रिंसिपल हो जाएगा 2000. 1000 का डबल 2000. देन P इक्वल टू तभी हो जाएगा 2000, क्योंकि डबल है तो 2000. इसे हम पुट कर दे रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर B. पुटिंग इन इक्वेशन नंबर B. इक्वेशन नंबर B वी गेट, तब स्टूडेंट यहां से मिलेगा हमें वैल्यू P के जगह पर लिख लेंगे 2000. दिस इक्वल टू e raised to the power t by 20 into 1000. ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से हमें वैल्यू मिलेगा e raised to the power t by 20. दिस इक्वल टू 2, दोनों साइड का log लिया जाएगा, तो यहां से मिलेगा हमें वैल्यू t by 20 इक्वल टू log 2, और यहां बेस e होगा. दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू 20 log 2 base e years. This is required time in which rupees 1000 becomes double itself. Now, dear student, some question is given in Google Classroom app. Thanks.